Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन थ्री मॉडर्न वर्ल्ड वन जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners. Today we are going to cover up new topic which is industrial revolution. So get ready. The industrial revolution began in England from about 1750 AD. This was possible because English merchants had accumulated huge wealth through overseas trade and her colonies secured the supply of raw materials. The colonies also acted as potential markets for finished goods. Moreover, England had huge amount of essential resources such as coal and iron, which were necessary for running the industries. Thus, the capitalists invested in the development of new machines to speed up the production with the aim of earning more profits. Now, machines began to take over some of the work of humans and animals for production. Though there was new development and the coming in of new machineries to improve production, the society became unequal. It created a division in society with the coming of two groups of people, the capitalist or the bourgeoisie and the worker or the proletariat as they were later called. You will read more about the Industrial Revolution in the next lesson. तो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत बेसिक जो जानकारी हम लोग को यहाँ से मिलने वाली है। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 1750 एडी में। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, अंग्रेज जो व्यापारी थे, उन्होंने बहुत सारे धन संपत्ति को विदेशी व्यापार से कमा के जमा कर लिया था और बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स को उन्होंने अपने कॉलोनीज में सिक्योर कर लिया था। ये जो कॉलोनीज था वो एक पोटेंशियल का काम कर रहा था। जो भी अपनी चीजें ये लोग बनाते थे वो उसे जाके मार्केट में सेल आउट कर देते थे। इसके अलावा जो इंग्लैंड है उसके पास बहुत सारे ऐसे जरूरी रिसोर्सेज थे जैसे कि कोल और आयरन, जो कि इंडस्ट्रीज को चलाने में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए जो कैपिटलिस्ट से जो पैसे को इन्वेस्ट करते थे न्यू मशीन्स को डेवलप करने में, इसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन होता था वो स्पीड पकड़ लिया और इससे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न होने लगे। अब नए नए मशीन्स बन गए थे और जितने भी जो ह्यूमंस काम करते थे या फिर एनिमल्स काम करते थे किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, उसकी जगह मशीन ने ले ली थी। और यहाँ पे नए नए डेवलपमेंट हुए, नए नए मशीनरीज आए जिससे प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट हुआ। जो सोसाइटी था वो अनइक्वल हो गया था और इसमें सोसाइटी डिवाइड हो चुका था टू ग्रुप्स में। एक कैपिटलिस्ट और बॉर्जियोसी कहलाते थे जो कि पैसे को इन्वेस्ट करते थे, पूंजीपति जिन्हें बोलते हो, और एक थे वर्कर या फिर प्रोलेटारिएट जो कि श्रमिक वर्ग जो काम करने वाले थे। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट लेसन में डिटेल से पढ़ोगे। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2। एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब ये जो क्रांति आया उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। The European Revolution of 1848 brought a series of political upheavals with their opposition to the traditional authority. There was a very strong dissatisfaction with political leadership, and people started demanding more participation in the affairs of the states. Political awareness, ideas like liberty, equality, and fraternity were popularized by the printing press. The revolutions which were most important occurred in America, France, Germany, Italy, and Russia. Britain had already faced a major change with the Glorious Revolution. The United States of America was born after the American War of Independence, and Russia experienced a workers' movement which led to the establishment of a socialist government. These upheavals were accompanied by a feeling of nationalism amongst
the population of many states which had been encouraged by enlightened ideas. Now we are going to read about these revolutions. तो ये जो यूरोपियन रिवॉल्यूशन था 1848 में स्टार्ट हुआ था, इससे बहुत सारे राजनीतिक उत्थान किए गए। पूरा उथल पुथल हो गया राजनीति का, ठीक है। उनके जो अपोजिशन थे या फिर जिनके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी था, उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। लोग इससे बुरी तरह से असंतुष्ट हुए, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप था जिन लोगों के पास, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। और जो नेता लोग थे, जो राजनीतिक जागरूकता फैलने लगी, जैसे कि भाईचारे की, स्वतंत्रता की, लोग बराबरी चाहते थे। तो ये सब आइडियाज का अराइज होना भी जरूरी था उन लोगों के बीच में, कि लोग लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसी चीजों को समझे कि आखिर ये है क्या, और ये ज्यादा प्रसिद्ध कैसे हुआ ये चीजें, थ्रू द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये जो क्रांति है वो बहुत ज्यादा महत्व रखा। और कहाँ पे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रसिया। ब्रिटेन में तो पहले से ही एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो रहा था। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसका जन्म कब हुआ? तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। और जो रसिया था, उसने एक वर्कर्स मूवमेंट को एक्सपीरियंस करा। मीन्स यहाँ पे वर्कर्स मूवमेंट हुए, और इसके बाद सोशलिस्ट गवर्नमेंट का स्थापना किया गया। ये जो उथल पुथल थे वो कैसे हुए? तो राष्ट्रवाद के चलते जितनी भी चीजें थी वो इधर से उधर हो गई। जितने भी पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या थी बहुत सारे स्टेट के, उनके पास नए नए आइडियाज, नए नए विचार उठ के आए। अब हम लोग इन रिवॉल्यूशंस के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रिवॉल्यूशंस कहाँ कहाँ पे और किस टाइम में हुए थे। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। आप लोग रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़े ना, बिकॉज एग्जाम में किसी एक रिवॉल्यूशन के ऊपर नोट्स लिखने आएगा। The Glorious Revolution of 1688 occurred in England much before the age of revolutions and proved a source of inspiration for the world. It was called the Glorious Revolution because no blood was shed to achieve its success. The Stuart King James II lost the popular support of his countrymen. This was due to his harsh attitude towards the people, the creation of an expensive standing army, and increasing employment of Roman Catholics in the government, army, and universities had angered the people. The parliament removed King James II from the throne in favor of his daughter Mary II and her husband William III, Prince of Orange. The autocratic rule of James II was replaced with a constitutional form of government. It showed that the parliament had the power to change the monarch. तो ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है वो 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो जब एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उससे बहुत पहले ये चीज स्टार्ट हो चुका था। और ये एक प्रेरणा का स्रोत बना पूरी दुनिया के लिए। लोग इससे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े। और इस रिवॉल्यूशन को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसको सक्सेस होने में, इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को सक्सेस अचीव करने में कोई भी खून को नहीं बहाया गया था। जो स्टुअर्ट किंग जेम्स टू थे वो पॉपुलर हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि उनके जो देश के लोग थे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग थे वो हार्श एटीट्यूड रखते थे, ये राजा अपने लोगों के साथ। और ये जो एक्सपेंसिव स्टैंडिंग आर्मी उठ के आया, मीन्स जो आर्मी थे वो एक्सपेंसिव थे। और इन्होंने रोमन कैथोलिक्स में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया। जो गवर्नमेंट, आर्मी और जो यूनिवर्सिटीज थे उनके लोगों को ये गुस्सा दिला दी। और जो पार्लियामेंट था वो किंग जेम्स टू को उनके राजगद्दी से हटा दिया, क्योंकि जो किंग जेम्स टू थे उन्होंने अपने बेटी मैरी टू और उनके जो हस्बैंड थे विलियम थ्री और विलियम थर्ड, जो कि प्रिंस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के प्रिंस थे, इनको राजगद्दी से पार्लियामेंट ने रिमूव कर दिया था। और इसमें जो जेम्स सेकेंड थे उन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल लगाया, जिसके बाद जो गवर्नमेंट था उसने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म कर दिया, मीन्स राजा को वहां से हटा दिया गया था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक पावर ने मोनार्क को हटाया। और इससे ये पता चलता जो पार्लियामेंट था उसके पास पावर था कि वो मोनार्क रूल को चेंज कर सके। समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन का जो वॉर था, ये अमेरिकन युद्ध स्वतंत्रता के लिए, वो क्या था। इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो that some of the political rights that we enjoy today are the direct outcome of two very important revolutions that occurred in the later part of the 18th century. They played a crucial role in the shaping of the modern world. These were the American Revolution and the French Revolution. Through these revolutions, people asserted their rights and ended exploitation. तो हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन युद्ध में क्या हुआ था। ये आपको जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो पॉलिटिकल राइट्स जो हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग के पास कैसे आया। तो ये डायरेक्ट आउटकम किसका है। दो एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ था 18 सेंचुरी के लेटर पार्ट में, 18वीं शताब्दी के लास्ट में। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो हमारे जीवन को शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मॉडर्न वर्ल्ड के। और ये रिवॉल्यूशन कौन कौन थे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इन रिवॉल्यूशन, इन क्रांति की वजह से जो लोग हैं वो अपने राइट्स को पहचानने लगे और उन्होंने शोषण का अंत कर दिया। लोग जब किसी का शोषण करते थे उस चीज का इन्होंने एंड कर दिया। Around the 16th century, many Europeans had settled in America because of religious persecution in England. Some of them were also attracted by economic opportunities. They had formed 13 colonies which had local assemblies to settle their problems. These colonies were suffering due to the British economic policy of mercantilism through which they tried to regulate colonial commerce in the British interest. The colonies were not permitted to set up industries as it would result in competition with the British industries like iron and textile. They had to export sugar, tobacco, and cotton only to England at prices determined by the mother country, England. This provoked opposition from the British American colonies. तो 16वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ कि बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका में बसने स्टार्ट हो गए, अमेरिका में सेटल होना स्टार्ट हुए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जो धार्मिक शोषण किया जाता था, उत्पीड़न दिया जाता था इंग्लैंड में। और इसमें से कुछ जो लोग थे जो जाके अमेरिका में जाके सेटल हो गए, बिकॉज उनको यहाँ का जो आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रहा था, उसकी वजह से ये लोग आकर्षित हो गए और उन्हें वहां पे जाके 13 कॉलोनीज का फॉर्मेशन किया। और इसके साथ लोकल असेंबलीज के साथ मिलके जिससे उनका जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका सेटलमेंट हो सके। ये जो कॉलोनीज था वो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से सफर कर रहा था। मीन्स इसमें कैसा पॉलिटिक्स था कि जो इसमें व्यापारी थे उनको क्या करना पड़ता था, अपना बिजनेस ब्रिटिश के इंटरेस्ट के साथ करना पड़ता था। ये जो कॉलोनीज था वो इंडस्ट्रीज को सेट करने में परमिशन नहीं देता था। और ये जो कंपटीशन था वो ब्रिटिश इंडस्ट्री से बढ़ रहा था, जैसे कि आयरन और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है। और वो लोग किसका एक्सपोर्ट करते थे, सुगर, टोबैको और कॉटन का, सिर्फ इंग्लैंड में। और किस दाम पे, जो इंग्लैंड जो है जो प्राइस को डिटरमाइन करते उसी दाम पे वो जाके सेल आउट करते थे, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से जो ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी था उसमें बहुत ही बड़ा जाके अपोजिशन वाले जो मिलके बहुत ज्यादा उत्पात करने लगे। By the 18th century, the wars with France and in India were proving very expensive for Britain. She needed money to fight these wars, and this was done by collecting taxes from the American colonies. In 1765, the British Parliament passed the Stamp Act on small business transactions like official documents, deeds, mortgages, newspapers, and pamphlets. The revenue was used to pay the cost of maintaining 10,000 British troops in America. The act was opposed by the colonists. Riots broke out in colonial port cities. The colonial assemblies passed resolutions against the Stamp Act. The British Parliament had to repeal the Stamp Act in 1766. However, the Parliament continued the tax on tea. On 16 December 1773, some Americans disguised as native Indians descended upon the three ships of the East India Company and dumped the tea into the sea. This incident is known as the Boston Tea Party. The Parliament closed the port of Boston, but the trigger was set for American War of Independence.
तो 18वीं शताब्दी में कुछ युद्ध होने लगे फ्रांस और इंडिया में, जिससे क्या हुआ कि ये ब्रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा महँगा पड़ गया और उनको ये इस युद्ध को लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होने लगी और वो इस पैसों को कहाँ से इकट्ठा करने लगे, तो टैक्स से और अमेरिकन कॉलोनी से। 1765 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने एक स्टैम्प एक्ट को पास किया कि जितने भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन होंगे जैसे कि ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स या डेट्स या ये मॉर्टगेजेस जो हो गया जो हम लोग बनवाते हैं ना कि जो अगर कोई आदमी मर जाते हैं तो हम लोग उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसे मॉर्टगेजेस बोला जाता है। न्यूज़पेपर्स और पैम्पलेट्स, अगर इसका कोई भी इस टाइप से कोई भी चीज प्रिंट करवाता है तो इसके ऊपर रेवेन्यू लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। ये जो रेवेन्यू कहाँ यूज किया जाता था, तो जो ब्रिटिश ट्रुप्स थे जो अमेरिका में थे, 10,000 ब्रिटिश ट्रुप्स, उनको ये रेवेन्यू पे किया जाता था, ये उनका खर्च था। ये जो एक्ट था वो कॉलोनिस्ट के द्वारा अपोज किया गया और इसकी वजह से दंगे फसाद हो गए कॉलोनियल पोर्ट सिटीज में। और जो ये कॉलोनियल असेंबलीज था उसने इस स्टैम्प एक्ट के विरुद्ध में अपना आवाज उठाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे वो स्टैम्प एक्ट को 1766 में रिपील कर दिए और जो पार्लियामेंट इसने टी के ऊपर टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। और 16 दिसंबर 1773 में कुछ जो अमेरिकन थे उन्होंने अपने नेटिव इंडियन से 3 शिप में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 3 शिप था उसमें उन्होंने टी लिया और जाके इसको सी में जाके बहा दिया, समुद्र में जाके बढ़ा दिया। और इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चा कि बोस्टन टी पार्टी क्या होता है, तो आप लोग ये लिखना कि जो अमेरिकन हैं उन्होंने नेटिव इंडियन से 3 शिप्स में, ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 शिप्स में टी भरा और इसे जाके सी में डंप कर दिया और इस इंसिडेंट को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। जो पार्लियामेंट थे उन्होंने पोर्ट ऑफ बॉस्टन, जो बॉस्टन पोर्ट था उसको क्लोज कर दिया और इसकी वजह से एक युद्ध निकल के आ गया, युद्ध छिड़ गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो अमेरिकन थे उन्होंने युद्ध छेड़ दिया अपने स्वतंत्रता के लिए। The representatives of the 13 colonies called the meeting of the First Continental Congress at Philadelphia in 1774 and appealed to the King of England not to impose taxes without their consent. The king regarded this as an act of rebellion and declared war. This led to fights and finally to the Declaration of Independence on 4th July 1776 at a Congress at Philadelphia, which proclaimed their independence from Great Britain and the formation of a cooperative union. It inspired the whole world with its emphasis on equality, right to life, liberty, and pursuit of happiness. The Bill of Rights granted many freedoms such as freedom of speech, press, religion, and justice under law. The American Revolution was a struggle by which the 13 American colonies won independence from Britain and gave birth to the nation that is now called the United States of America. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे 13 कॉलोनीज के, जिन्हें क्या बोला जाता था, मीटिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, और ये फिलाडेल्फिया में 1774 में किया गया था। इन्होंने क्या अपील किया था इंग्लैंड के राजा से कि ये टैक्सेस ना ले बिना कंसेंट के, लेकिन जो राजा थे उसने इस एक्ट को क्या माना कि ये जो एक्ट है वो हमारे विरोध में किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने युद्ध को घोषित कर दिया कि अब युद्ध होना है। और इसकी वजह से जो लोग थे वो फाइट करने लगे और फाइनली उनको इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन मिल गया। कब मिला? 4 जुलाई 1776 को कांग्रेस को। और ये फिलाडेल्फिया में हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम किया ग्रेट ब्रिटेन से, मीन्स वो ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हो गए और उन्होंने एक कोऑपरेटिव यूनियन का फॉर्मेशन किया। इसकी वजह से जो पूरी दुनिया थी वो इंस्पिरेशन लिए इस जगह से, और उन्होंने भी इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मीन्स सभी लोग खुश रहे, इसके ऊपर सभी लोगों ने जोर देना स्टार्ट कर दिया। जब बिल ऑफ राइट्स जो था उसे ग्रांट किया गया बहुत सारे फ्रीडम्स के द्वारा, ऐसे इसमें बहुत सारे बिल्स बनाए गए, जैसे कि लोगों के पास बोलने की फ्रीडम होगी, प्रेस की फ्रीडम होगी, मीन्स वो प्रेस बुला सकते हैं, फिर रिलीजन के ऊपर फ्रीडम है कि आप वो कोई भी रिलीजन को अपना सकते हो, और जस्टिस अंडर लॉ, मीन्स इसका भी फ्रीडम था कि कानून के अंदर उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था 13 अमेरिकन कॉलोनीज के द्वारा, जिन्होंने उन्हें जीत लिया और वो आजाद हो गए ब्रिटेन से, और इससे एक नए नेशन की शुरुआत हुई। और इस नेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए। यहाँ पे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।
In the 18th century, French society was still feudal in character, with the monarch exercising complete authority. It was divided into three classes or states. The first state of clergy or church and the second state of nobility enjoyed all the luxuries and many privileges over religion and the governance of the country. The third state of the commoners, such as peasantry, city workers, and the middle class, were heavily burdened with taxes. 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, फ्रेंच सोसाइटी जो थे वो अभी भी फ्यूडल थे, जागीरदारी सिस्टम उसमें चल रहा था और लोग उसमें भी जो राजा रानी थे वो वहां पे जाके गवर्नमेंट चला रहे थे, उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी था। लेकिन ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब था होने वाला था, जो ये फ्रेंच सोसाइटी था वो तीन क्लास और तीन स्टेट्स में डिवाइड हो चुके थे। फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी और चर्च का। दूसरा स्टेट किसका था, नॉबिलिटी, जो पूरी तरह से लग्जरियस लाइफ जी रहे थे और बहुत सारे विशेषाधिकार को एंजॉय कर रहे थे, जैसे धर्म के ऊपर या फिर जो सरकार है उसके ऊपर। और जो थर्ड स्टेट था वो था कॉमन पीपल का, जैसे कि किसान, सिटी वर्कर्स और मिडिल क्लास, ठीक है, जो कि जिनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस डाल दिए गए थे। The internal condition of France made it an ideal stage for a revolution to take place. Louis XVI and his wife Marie Antoinette's luxurious lifestyles had emptied the treasury and made the country bankrupt. Louis XVI was forced to call a meeting of representatives of the three states, the clergy, the nobility, and the commoners in 1789. He wanted to gain approval for new tax law. The third state demanded equality in taxation and abolition of special privileges enjoyed by the first two states. It declared itself a national assembly and took over the sovereign power from the emperor. The historic French document Declaration of the Rights of Man and Citizen was adopted. It was later embodied as the preamble in the French Constitution of 1791. Thus was influenced by the US Declaration of Independence, asserting the equality of all men, the sovereignty of the people, and the rights to liberty, property, security, right to education, to free speech, to be informed, right of the poor, to public assistance, a ban on torture and slavery, recognition of the right of the people to choose their government, and the eligibility of all citizens for employment in public offices. तो जो फ्रांस का जो इंटरनल कंडीशन था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। क्यों चेंज हुआ था, जो लुइस 16वें थे और उनकी जो वाइफ मैरी एंटोनेट थी, उनका जो भी जिंदगी जीने का जो तरीका था बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। इसके वजह से जो उनका खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और जो कंट्री था वो बैंकक्रप्ट हो चुका था। लुइस 16 को फोर्स किया गया एक मीटिंग को कॉल करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। थ्री स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, क्लर्जी, नॉबिलिटी और कॉमनर्स, 1789 में उन्होंने एक मीटिंग को कॉल किया, मीटिंग बुलाया। वो एक न्यू लॉ बनाना चाहते थे, टैक्स लॉ। इसके लिए वो अप्रूवल चाहते थे। जो थर्ड स्टेट था उसने डिमांड क्या किया कि टैक्स इक्वल होना चाहिए और जो भी स्पेशल अधिकार मिल रहे हैं फर्स्ट टू स्टेट्स को वो उन्हें भी मिलना चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने खुद को डिक्लेयर कर दिया अदर पावर के ऊपर कि हम सॉवरेन है और जो एम्परर है उसके पावर को हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। इसकी वजह से जो फ्रेंच डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसको अडॉप्ट किया गया। बाद में इसमें एक प्रियम्बल वाला फीचर जोड़ दिया गया, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया गया 1791 में। इसकी वजह से जो यूएस डिक्लेयर किया था अपने इंडिपेंडेंस को, जैसे कि जो मैन है जितने भी सब इक्वल होंगे, लोग भाईचारा के साथ रहेंगे, उनका ये अधिकार है कि वो एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, प्रॉपर्टी है वो भी इक्वल मिलना चाहिए, सिक्योरिटी, फिर एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, बोलने की आज़ादी सबको मिलना चाहिए, सबको सूचना मिलना चाहिए, जो गरीब है उनको पब्लिक असिस्टेंस में जगह मिलना चाहिए, फिर या फिर कोई भी टॉर्चर या फिर कोई भी गुलामी प्रथा उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। लोग अपने अधिकारों को पहचाने और अपने गवर्नमेंट्स को खुद को चूज करें, जितने भी सिटीजन थे वो पब्लिक ऑफिस में खुद को एम्प्लॉय करें। तो ये जो चीजें थी वो यहाँ पे फ्रांस में भी अपनाया गया था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर्स एंड the Napoleonic Wars starting from 1789 and lasting for about 15 years resulted in the formation of the French Republic. The French Revolution tore down the medieval structures of Europe and brought in new ideas of liberalism and nationalism.
France witnessed a complete change in the government, administration, military, society, and culture. France became a republic under Napoleon Bonaparte. The guiding principles of the French Revolution were liberty, fraternity, and equality. The revolutionaries were inspired by the ideas of many Enlightenment thinkers and philosophers such as वोल्टायर, मॉन्टेस्क्वी एंड रोजियो। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर थे वो नेपोलियनिक वॉर्स, ये दोनों कब स्टार्ट हुए थे? 1789 और 15 साल तक चले थे, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रेंच रिपब्लिक का निर्माण किया गया। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो मेडिवल स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरोप में पूरी तरह से डाउन हो चुके थे और इसमें नए नए आइडियाज जैसे कि लिबरलिज्म, स्वतंत्रता और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। फ्रांस ने बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि गवर्नमेंट में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीके में, मिलिट्री और सोसाइटी और कल्चर में। फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बन चुका था नेपोलियन बोनापार्टी के अंदर में, और इनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वो क्या थे? स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा और इक्वालिटी मीन्स बराबरी। ये जो क्रांतिकारी थे वो बहुत सारे आइडियाज से इन्फ्लुएंस हुए, इन पे प्रभाव पड़ा, वो इंस्पायर हुए, और बहुत सारे ऐसे ऐसे थिंकर्स और फिलोसफर्स हमारे सामने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आए, वोल्टियरी, मॉन्टेस्क्यू और रोजियो। The American War of Independence and the French Revolution popularized the feeling of nationalism all over the world. The idea of nationalism from America, France, and Britain influenced the Italians. The result was a revolution for a unified kingdom of Italy in 1861. ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुका था पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद के कारण। ये जो राष्ट्रवाद का जो आइडिया था अमेरिका और फ्रांस ब्रिटेन से, उससे इटालियंस भी प्रभावित हुए, और इसके परिणाम स्वरूप वहां पे भी एक रिवॉल्यूशन हुआ, यूनिफाइड किंगडम ऑफ इटली, जो कि 1861 में किया गया था। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का एंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।